Welcome to this video on Python collections, where we'll cover lists, tuples, sets, and dictionaries. This is a complete A to Z guide, with examples to help you master these essential data structures. Here is the agenda for this video. We will start with an introduction to collections, then dive into lists, tuples, sets, and dictionaries. Finally, we will compare them and summarize the key takeaways. Data structures data को efficiently organize और store करने के लिए use होती हैं. Python में 4 primary collections होती हैं और हर एक का अपना specific purpose होता है. List, ordered और mutable होती है, यानी इसके elements को change किया जा सकता है. Tuple, ordered और immutable होती है, यानी create होने के बाद इसके elements change नहीं किए जा सकते. इस वजह से यह fast और hashable होती है. Set, unordered होता है और सिर्फ unique elements store करता है. Set operations के लिए बहुत useful होता है. Dictionary, key value pairs की form में data store करती है. ये mutable होती है और data को बहुत तेजी से lookup करने की सहूलत देती है. Our first section focuses on lists in Python. They are reordered, mutable, and versatile collections, serving as your go-to container for sequences of data. Lists ordered और mutable होती हैं और different data types को store कर सकती हैं. आप lists को square brackets, list constructor, या list comprehension की मदद से create कर सकते हैं. Shopping cart की तरह list के items E के specific order में होते हैं और आप उन्हें positive indexing या negative indexing के जरिए access कर सकते हैं. Python list के PAAS built-in methods का E के rich set होता है. इसमें include होता है append और insert जैसे functions जो elements add करते हैं remove और pop जो elements को delete करते हैं sort, reverse, index, count, copy और clear जैसे utility methods. इसके अलावा built-in len function list में मौजूद total elements की तादाद return करता है. List slicing आपको list का कोई specific हिस्सा extract करने की सहूलत देती है. इसके लिए start, stop और step parameters यूज किए जाते हैं. List पर iteration करना बहुत आसान है. आप simple for loop यूज कर सकते हैं या enumerate का इस्तेमाल करके हर element के साथ उसका index भी हासिल कर सकते हैं. List comprehension नए lists बनाने का एक concise, मुख्तसर और efficient तरीका है. इससे अक्सर elements को filter करने या modify करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे fruits list की example में दिखाया गया है. Next we move to tuples in Python. These collections are reordered, immutable, and efficient. Use a tuple when your data should never change. Tuples immutable sequences होती हैं, यानी इनके elements create होने के बाद change नहीं किए जा सकते. इन्हें AAM तौर पर parentheses के अंदर define किया जाता है. हम different तरह के tuples create कर सकते हैं. Simple tuple 1, 2, 3. Single element tuple 1, जिसमें कोमा लगाना जरूरी होता है. Empty tuple tuple packing जहां parentheses के बगैर values लिखकर tuple बनाया जाता है, जैसे 1, 2, 3. Tuple के elements को indexing और slicing के जरिए access किया जा सकता है. Tuples thread safe और hashable होती हैं, इसलिए ये fixed data जैसे coordinates store करने या dictionary keys के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए बहुत useful होती हैं. The next section covers sets in Python. Sets are unordered, unique, and mathematically powerful, enabling you to eliminate duplicates and perform set algebra with ease. एक set unique और hashable elements का गैर मुरत्तब unordered collection होता है. इसे curly braces या set constructor का इस्तेमाल करके बनाया जाता है. Sets mathematical set operations को support करते हैं, जैसे union, intersection, difference और symmetric difference, जिन्हें यहाँ Venn diagram के जरिए दिखाया गया है. किसी element की membership check करना sets में बहुत efficient और तेज होता है. Finally, we examine dictionaries in Python. They utilize key value pairs, provide fast lookup, and offer a flexible structure, making them the most versatile built-in collection. Dictionaries data को unique और hashable keys के साथ store करती हैं जहां की किसी value से map होती है. यह बिल्कुल phone book की तरह काम करती हैं जहां आप किसी नाम, key की मदद से फौरन उसका number value ढूंढ सकते हैं. Dictionary में हम आसानी से key के जरिए value access कर सकते हैं, नए key value pairs add कर सकते हैं, existing values को update कर सकते हैं, key value pairs को delete कर सकते हैं. Dictionaries nesting को भी support करती हैं, यानी E के dictionary के अंदर दूसरी dictionary या दूसरे data structures store किए जा सकते हैं. इससे complex और organized data structures बनाना आसान हो जाता है. Dictionary की कुछ important methods में keys, values और items शामिल हैं, जो dictionary के data को देखने के लिए यूज की जाती हैं. Keys तमाम keys return करती हैं. Values तमाम values return करती हैं. Items key value pairs return करती हैं. आप update method की मदद से दो dictionaries को merge कर सकते हैं, जबकि copy मेथड डिक्शनरी की शैलो कॉपी बनाती हैं. डिक्शनरी पर इटरेशन करने के लिए सिर्फ कीज पर लूप चला सकते हैं या आइटम्स यूज करके कीज और वैल्यूज दोनों पर एक साथ इटरेट कर सकते हैं. डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन डिक्शनरीज क्रिएट करने का एक कंसाइज, मुख्तसर और एफिशिएंट तरीका है जो काम कोड में नए डिक्शनरीज बनाने की सहूलत देता है. यह कंपैरिजन टेबल डेटा स्ट्रक्चर्स की हम प्रॉपर्टीज का खुलासा करती है. सिंटैक्स के फर्क पर गौर करें. लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होते हैं. टुपले के लिए पैरेंथेसिस यूज होते हैं.
सेट और डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज होते हैं। म्यूटेबिलिटी, डुप्लीकेट एलिमेंट्स की हैंडलिंग, इंडेक्सिंग सपोर्ट और यूज केसेस में मौजूद फर्क को समझना बहुत जरूरी है। इन डिफरेंसेस को देखकर आप अपनी जरूरत के मुताबिक सही डेटा स्ट्रक्चर का इंतखाब कर सकते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि हर कलेक्शन को काबू से करना चाहिए। लिस्ट उस वक्त यूज करें जब डेटा का ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो और डेटा फ्रीक्वेंटली चेंज होता हो। टपल्स डेटा के लिए यूज करें जो चेंज नहीं होना चाहिए या जब उन्हें डिक्शनरी कीज के तौर पर इस्तेमाल करना हो। सेट्स उस वक्त बेस्ट होते हैं जब यूनिक वैल्यूज की जरूरत हो या सेट मैथमेटिक्स ऑपरेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस परफॉर्म करनी हन। डिक्शनरीज की बेस्ड लुकअप और डिफरेंट वैल्यूज के दरमियान रिलेशनशिप्स को मैप करने के लिए सबसे बेहतरीन चॉइस हैं। सही डेटा स्ट्रक्चर का इंतखाब आपके प्रोग्राम को ज्यादा एफिशिएंट, रीडेबल और मेंटेनेबल बनाता है। पाइथन कलेक्शंस को नेस्टेड फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है, जैसा कि इस यूनिवर्सिटी डेटाबेस की मिसाल में दिखाया गया है। एक डिक्शनरी डिपार्टमेंट्स को स्टोर करती है जिसमें स्टूडेंट डिक्शनरीज की लिस्ट्स होती हैं। हर स्टूडेंट डिक्शनरी में कोर्सेज के लिए टपल्स और फैकल्टी और रूम नंबर्स के लिए सेट्स मौजूद होते हैं। स्ट्रक्चर मैप इस कॉम्प्लेक्स नेस्टिंग को विजुअल तौर पर समझाता और दिखाता है। कॉम्प्रिहेंशंस पाइथन में कलेक्शंस बनाने का ईके पाइथोनिक और एलिगेंट तरीका है जो ईके ही लाइन में डेटा क्रिएट कर देते हैं। इस माइन लिस्ट, सेट और डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशंस शामिल होती हैं। टपल कॉम्प्रिहेंशन का सिंटैक्स एक्चुअली ईके जनरेटर क्रिएट करता है जो मेमोरी एफिशिएंट होता है। ये वैल्यूज को लेजली जरूरत पर कंप्यूट करता है, यानी सब वैल्यूज पहले स्टोर नहीं करता बल्कि जब नीड होती है तब जनरेट करता है। कॉमन मिस्टेक से बचना जरूरी है। एम्प्टी सेट से क्रिएट किया जाता है, से नहीं। याद रखें कि टपल्स इम्यूटेबल होते हैं और अगर टपल में सिर्फ ई के एलिमेंट हो तो उसके बाद ट्रेलिंग कॉमा लगाना जरूरी होता है। डिक्शनरीज के लिए सेफ लुकअप करने के लिए .get मेथड यूज करें और इटरेशन के दौरान सेफ डिलीशन के लिए लिस्ट डी कीज का इस्तेमाल करें। बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाने से कोड की क्वालिटी और रीडेबिलिटी बेहतर हो जाती है। जहां डेटा चेंज नहीं होता वहां लिस्ट्स की बजाय इम्यूटेबल टपल्स को तरजीह दें। फास्ट मेंबरशिप टेस्टिंग के लिए सेट्स का इस्तेमाल करें। सेफ एक्सेस के लिए dict.get यूज करें। लूप्स की बजाय लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस को प्रेफर करें और डिक्शनरीज में डिस्क्रिप्टिव कीज रखें। TAA के कोड ज्यादा रीडेबल हो। नेम टपल्स टुपल की स्पीड के साथ एट्रीब्यूट एक्सेस की सहूलत भी फराहम करते हैं। यह परफॉर्मेंस चार्ट चारों कलेक्शंस में कॉमन ऑपरेशंस की एवरेज केस टाइम कंप्लेक्सिटी का कंपैरिजन दिखाता है। एफिशिएंसी के डिफरेंसेस को नोट करें, खास तौर पर डिक्शनरीज और सेट्स में मेंबरशिप टेस्टिंग और इंडेक्सिंग के लिए एवरेज O1 टाइम कंप्लेक्सिटी को। इसके मुकाबले माइन लिस्ट्स और टपल्स में यह ऑपरेशन एवरेज ON टाइम कंप्लेक्सिटी ली रहे। इससे यह पता चलता है कि डिक्शनरीज और सेट्स लार्ज डेटा सेट्स में सर्चिंग, लुकअप और मेंबरशिप टेस्टिंग के लिए ज्यादा एफिशिएंट और तेज परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। यह कॉम्प्रिहेंसिव स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की ईके मिसाल पेश करता है। इसमें स्टूडेंट रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए डिक्शनरी का इस्तेमाल किया गया है। कोर्सेज के लिए लिस्ट्स, डेट ऑफ बर्थ जैसी इम्यूटेबल इंफॉर्मेशन के लिए टपल्स और यूनिक स्किल्स को स्टोर करने के लिए सेट्स यूज किए गए हैं। यह दिखाता है कि कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में ये तमाम कलेक्शंस किस तरह मिलकर काम करती हैं और डेटा को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करती हैं। यहाँ बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं TAA कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर सकें। वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करें और इन एक्सरसाइजेस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे आपकी लर्निंग मजबूत होगी और कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। ये क्विक रेफरेंस चीट शीट लिस्ट्स, टपल्स, सेट्स और डिक्शनरीज के बेसिक ऑपरेशंस और की प्रॉपर्टीज का समरी प्रोवाइड करता है। कन्वर्जन फंक्शंस को याद रखें। TAA के आप डिफरेंट कलेक्शन टाइप्स के दरमियान डेटा को आसानी और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कन्वर्ट कर सकें। खुलासा यह है कि लिस्ट्स म्यूटेबल और ऑर्डर्ड होती हैं जो सीक्वेंसेस के लिए यूज होती हैं। टपल्स इम्यूटेबल होती हैं और फिक्स डेटा के लिए बेस्ट हैं। सेट्स यूनिक और अनऑर्डर्ड होती हैं जो डीडुप्लिकेशन और मेंबरशिप के लिए यूज होती हैं। डिक्शनरीज की वैल्यू पेयर्स यूज करती हैं और फास्ट लुकअप और मैपिंग के लिए बेस्ट होती हैं। हमेशा काम के मुताबिक सही डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें। Thank you for watching this video on Python collections. The course material is available for reference. Please feel free to explore additional resources and documentation to continue your learning journey.